afternoon, everyone. My name is Sajid Khan. I am nursing tutor of Index Nursing College. Today's my topic nephrotic syndrome. Definition: nephrotic syndrome is a clinical complex characterized by a number of renal and external features, most prominent of which are nephrotic syndrome is a group of disease of kidney एंड इसमें क्या होता है प्रोटीनूरिया हाइपोएल्बुमिनिया एडिमा हाइपरटेंशन हाइपरलिपिडीमिया लिपिड्यूरिया एंड हाइपर कोगुलेबिलिटी नेफ्रोटिक सिंड्रोम्स आर नॉट अ डिसीज़ इसमें क्या होता है एडिमा हो जाता है हाइपरलिपिडीमिया होता है प्रोटीनूरिया होता है हाइपोएल्बुमिनिया होता है देन क्लासिफिकेशन नेफ्रोटिक सिंड्रोम कैन बी primary and secondary. Primary being a disease specific to the kidney. Secondary being a renal manifestation of a systemic general illness. प्राइमरी कोज क्या है नेफ्रोटिक सिंड्रोम के मिनिमल चेंजेस नेफ्रोपैथी 70 to 90% चिल्ड्रंस एंड 10% एडल्ट फोकल glomerulosclerosis 50% in adult membranous nephropathy 30% in adult rapidly progressive glomerulonephritis glomerulonephritis क्या है inflammation of the glomerulus of kidney secondary cause include क्या क्या कोर्स है नेफ्रोटिक सिंड्रोम के सेकेंडरी कोर्स है डायबिटीज़ मेलाइटिस है लुपुस इरिथेमेटोस एमेलोडोसिस वायरल इन्फेक्शन जैसे कि हेपेटाइटिस बी हेपेटाइटिस सी HIV एंड प्री इक्लेम्सिया देन सेकेंडरी कोसेज ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम पैथोजेनेसिस ऑफ एडिमा फर्स्ट क्या होगा प्रोटीनूरिया होगा वो क्या करेगा ड्यू टू इटोलॉजी फैक्टर रिड्यूस एल्बुमिन एंड रिड्यूस ऑन्कोटिक प्रेशर फिर एडिमा कोज करेगा फिर उसके बाद रिड्यूस ब्लड वॉल्यूम एंड लास्ट में रेनिन एंटागोनिस्ट एडोलोस्ट्रोन जो हार्मोन्स रहते हैं वो क्या करेगा इंक्रीज करेगा लिवर इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ एल्बुमिन एंड लाइपोप्रोटीन कैरियर्स ऑफ एंड कोलेस्ट्रॉल्स सब क्या हो जाएगा इम्बेलेंस हो जाएगा Purposed explanation of infection is Purposed explanation include the following: urinary immunoglobulin losses, edema fluid acting as a culture medium, protein deficiency, decreased bacterial activity of the leukocytes, immunosuppression therapy, urinary loss of complement factor, properdin factor B that opsonize creatine bacteria. Hyperlipidemia due to increased hepatic lipoprotein synthesis and triggered by reduced oncotic. Defective lipid catabolism has also important role. LDL low density and cholesterol are increased majority of patients where very low density lipids and triglyceride tends to rise in patients with severe disease. It increases the relative risk for 5.5 fold and coronary death 2.8 fold. It also increases progression of renal disease. Hypocalcemia. Hypocalcemia is common in the nephrotic syndrome, but rather than be a true hypocalcemia, it is usually caused by low serum albumin level. Non-thalus, low bone density and abnormal bone histology are reported in association with nephrotic syndrome.
क्या होगा, इसमें जो बोन की डेंसिटी होगी वो लो हो जाएगी, एंड दिस कुड बी कोज्ड बाय यूरिनरी लॉस ऑफ विटामिन डी, बाइंडिंग प्रोटीन with consequent hypovitaminosis D, and as a result reduced intestinal calcium absorption। क्या होगा, ग्लूमरस इन्फिल्ट्रेशन के कारण, उसमें एब्नॉर्मलिटी के आने के कारण जो हमारा विटामिन डी, प्रोटीन, लिपिड, क्या होगा, सबका एब्नॉर्मल फंक्शन होने के कारण लो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन होगा। हाइपोवोलेमिया occur when hypoalbuminemia decrease the plasma oncotic pressure, resulting in a loss of plasma water into the interstitium and causing a decrease in circulating blood volume. Hypovolemia is generally observed only when the patient's serum albumin level less than 1.5 gram per dl. Hypotension is late features, ये चीज़ नेफ्रोटिक सिंड्रोम में होगी। देन सिम्टम्स एंड साइंस, नेफ्रोटिक सिंड्रोम के क्या क्या सिम्टम्स एंड साइन इसमें इंक्लूड है। एनोरेक्सिया, लॉस ऑफ एपेटाइट, माइलेज एंड फैटिग होगा। पुफी आई लिड, स्वेलिंग आएगी आई लिड पे। रेटिनल शीन, एब्डोमिनल पेन, पेट दर्द होगा। वेस्टिंग ऑफ मसल्स एंड एडिमा। फ्लूइड रिटेंशन के कारण क्या होगा, बॉडी में एबनॉर्मल इंटर स्पेस पर फ्लूइड का एक्लूमेशन हो जाएगा। मोस्ट ऑफ्टन द एडिमा इज मोबाइल डिटेक्टेड द आई लीड इन द मॉर्निंग एंड द एंकल आफ्टर एम्बुलेशन। फोकल एडिमा मे बी द रीज़न फॉर सीकिंग हेल्प फॉर सच कंप्लेंट एज डिफ़िकल्टी ऑफ ब्रीथिंग कैसे होगी, जो प्लूरल इन्फ्यूजन के कारण। लेरेंजल एडिमा हो जाएगा हमारे प्लूरल कैविटी में, एंड एक्लूमेशन हो जाएगा प्लूरल कैविटी में फ्लूइड का, उसके कारण क्या होगा, डिफ़िकल्टी ऑफ ब्रीथिंग। देन सब एक्सटर्नल चेस्ट पेन होगा। पेरिकार्डियल इन्फ्यूजन, स्कोटल स्वेलिंग होगी, स्वेलन नी, स्वेलन एब्डोमिनल असाइटिस, एब्डोमिनल पेन फ्रॉम एडिमा ऑफ द मेस्टेंट्री। ये साइन एंड सिम्टम्स हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम्स के, मेनली है एडिमा, ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी, एब्डोमिनल पेन होगा। डिफरेंशियल डायग्नोसिस, हार्ट फेल्यूर है, सिरोसिस, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। वर्कअप, डायग्नोस्टिक स्टडी फॉर नेफ्रोटिक सिंड्रोम में भी इंक्लूड फॉलोइंग। क्या क्या करना है हमको डायग्नोस के लिए, क्या क्या इन्वेस्टिगेशन कराना पेशेंट के लिए। यूरिन एनालिसिस करना है हमको, यूरिन सेडिमेंट एग्जामिनेशन, यूरिन प्रोटीन मेजरमेंट 24 आवर्स, हर 24 आवर्स में हमें प्रोटीन मेज़र करना है। सीरम एल्बुमिन देखना है हमें, सीरोलॉजिक स्टडीज फॉर इन्फेक्शन एंड इम्यून एबनॉर्मलिटीज़, रीनल अल्ट्रासोनोग्राफी, रीनल बायोप्सी। हमें ये इन्वेस्टिगेशन करानी नेफ्रोटिक पेशेंट के अंदर, नेफ्रोटिक सिंड्रोम के पेशेंट के अंदर यूरिन एनालिसिस है, रीनल बायोप्सी है, रीनल अल्ट्रासोनोग्राफी है, सीरम एल्बुमिन। हर 24 आवर्स में हमें प्रोटीन को मेज़र करना है, यूरिन के अंदर प्रोटीन यूरिया हो रहा है कि नहीं। देन मैनेजमेंट में क्या है, डाइट एंड एक्टिविटी, क्या क्या डाइट देनी है पेशेंट को। द डाइट इन पेशेंट विथ नेफ्रोटिक सिंड्रोम शुड प्रोवाइड एडुकेट एनर्जी, कैलोरिक इंटेक एंड एडुकेट प्रोटीन 1-2 ग्राम पर केजी पर डे। प्रोटीन का एक्सक्रीशन के कारण हमें क्या करना है, प्रोटीन हमको पर डे 1 से 2 ग्राम पर केजी पर डे हमको पेशेंट को देना है। ए डाइट विथ नो एडेड साल्ट विथ हेल्प लिमिट फ्लूइड ओवरलोड, हमें लो साल्ट डाइट देना है। मैनेजमेंट ऑफ हाइपरलिपिडेमिया कुड बी ऑफ सम इम्पोर्टेंस इफ द नेफ्रोटिक स्टेट इज प्रोलॉन्ग्ड। फ्लूइड restriction per she is not required. Ongoing activity rather than bed rest
विद रिड्यूस द रिस्क ऑफ ब्लड क्लॉट्स। हमें क्या करना है, बेड रेस्ट के लिए पेशेंट को बोलना। मैनेजमेंट एक्यूट नेफ्रोटिक सिंड्रोम इन एडल्ट। हमें क्या करना है, डाययूरेटिक्स विल बी नीडेड, फ्रूशामाइड, स्पिरोलेक्टोन एंड इवन मेटोलाजोन may be used. Volume depletion may occur with diuretics use which should be monitored। हमें क्या करना है, हम डाययूरेटिक्स में क्या देंगे पेशेंट को, फ्रूशामाइड, लेसिक्स क्या करेगा, वो यूरिन आउटपुट बढ़ाएगा। एंटी कोगुलेशन रख देंगे, जहाँ भी क्लोट है उसको प्रिवेंट करने के लिए हैज़ बीन एडवोकेटेड बाय सम फॉर यूज प्रिवेंटिंग थ्रम्बो एम्बोलिक कॉम्प्लिकेशन। जहाँ जहाँ एम्बोलिज्म है, ब्लड का क्लोट है, एंटी कोगुलेंट ड्रग क्या करेगी, उसको ब्लड क्लोट को प्रिवेंट करेगी। एंड एग्जांपल में क्या है, एंटीकोगुलेंट ड्रग में हेपेरिन है, वारफरिन है, etc। हाइपोलिपिडेमिक एजेंट may be used but if the nephrotic syndrome cannot be controlled, the patient will have persistent hyperlipidemia. ACE inhibitors and or ARB are widely used. This may reduce proteinuria by reducing the systemic blood pressure, by reducing intraglomerular pressure, and also be direct action on podocytes। लॉन्ग टर्म मॉनिटरिंग करना हमको। फॉलो अप केयर पेशेंट विथ नेफ्रोटिक सिंड्रोम इंक्लूड इम्यूनाइजेशन, ट्रीटमेंट ऑफ रिप्लेस ऑफ स्टेरॉइड रिस्पॉन्सिव नेफ्रोटिक सिंड्रोम, मॉनिटरिंग फॉर स्टोरी टॉक्सिसिटी एंड हमें मॉनिटर करना है कि टॉक्सिसिटी नहीं हो रही है स्टोरेट के कारण। मॉनिटरिंग ऑफ डाययूरेटिक्स एंड एंजियोटेंसिन एंटागोनिस्ट रेजिमेंट्स। मेडिकेशन समरी हम क्या देंगे, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स। कोर्टिकोस्टेरॉइड्स में एग्जांपल है प्रेडनिसोलोन, साइक्लोफोस्फामाइड, साइक्लोस्पोरिन, माइकोफिनोलेट, डाययूरेटिक्स, एसी इनहिबिटर एंड ARB। डाययूरेटिक्स में हम लेसिक्स देंगे। थैंक यू।